أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 188 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 186 میں ہم نے دعا کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے اللہ دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے حکم کو مانیں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی جئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقت انسان دعاؤں میں لگاتا ہے وہ اصل میں عبادت میں لگاتا ہے، اور عبادت کبھی ضائع نہیں جاتی. اور جو وقت انسان دعاؤں میں گزارتا ہے وہ وقت کبھی ضائع نہیں جاتا. کبھی کبھی ہمارا پروردگار عطا کرنے میں اس لیے تاخیر کر دیتا ہے کہ اسے اپنے بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا بہت اچھا لگتا ہے. بندہ مانگتا رہتا ہے اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی. کبھی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، کبھی ٹھیک وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس سے بہتر کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. مگر دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی. آیت نمبر 188 ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے. سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ اور ظلم کے ذریعے ان کے مالوں کو مت کھاؤ. آپس کی مال اور دولت کو غلط طریقے سے مت لو. اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، جتنا میں اپنے مال کو سے محبت کرتا ہوں، جتنا میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کو کوئی دھوکے سے نہ کھائے، جیسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ چیٹنگ نہ کرے، ویسے ہی دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے، اور یہ میک شور کرنا چاہیے، انشور کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی دھوکا نہ ہو. یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ کہ اگر کوئی چیز 5,000 کی ہے اور آپ اس کو 10,000 کا بول کے بیچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بزنس میں دھوکا مت کرو، سروس کانٹریکٹس میں دھوکا مت کرو، جو وعدہ کیا ہے اسے نبھاؤ. پرائزنگ کی ویلیوز وغیرہ انفیئر طریقے سے مت رکھو. کسی کی لا علمی کا بھی فائدہ مت اٹھاؤ. جیسے اگر کسی کی گاڑی خراب ہوئی ہے، وہ کسی میکینک کے پاس جاتا ہے، اس کی گاڑی چل نہیں رہی ہے، اس کی گاڑی میں کوئی چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہے جس کو منٹوں میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ میکینک بڑھا چڑھا کے اس کے اندر غلطیاں بتاتا ہے کہ اس کی تو یہ بھی خراب ہو گیا، اور اس کا انجن میں بھی یہ ڈیفیکٹ ہے، اور اس کی تو یہ چیز بدلنی پڑے گی، اور اس کے اندر تو 2-3 گھنٹے لگیں گے، آپ تھوڑا واپس آئیے تھوڑی دیر بعد. یعنی وہ اسے دھوکا دیتا ہے اور اس طریقے سے اس سے مال ہڑپتا ہے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. یا کوئی ڈاکٹر ہے جو آپ کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کی چھوٹی سی بیماری کے لیے ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، یا سرجری کی ضرورت نہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، جبکہ دوائیوں سے وہ بیماری ٹھیک ہو جا سکتی ہے. یا کسی کے مال کو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کھا لینا. جیسے اگر کوئی شخص ہے جو مجبور ہے اور اسے اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے، اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو لوگ اس کے ساتھ کم سے کم قیمت میں سودا کرنا چاہتے ہیں. اسے پتا ہے کہ یہ مجبور ہے، یہ بیچے گا ہی، تو اسے کم سے کم قیمت میں خرید لینا. یا جیسے آپ بینک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں یا کوئی پالیسی پیپر سائن کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس میں اتنے سارے چھوٹے چھوٹے کلوز ہوتے ہیں جو آپ کو دھوکا دینے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، یا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ کے پیسے برباد ہو گئے یا ہم نے کوئی غلط طریقے سے آپ کے پیسوں کو استعمال کر لیا تو آپ ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں کر سکتے.
क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स इतने बड़े होते हैं कि ना हमारे उनका पढ़ना भी मुश्किल होता है और उनको समझना भी मुश्किल होता है। तो लोग बस उस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए साइन कर देते हैं और फिर वो आपके पैसे हड़प लेते हैं और उसके खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने तो उनके कागज़ात पर साइन किया है। इसके अलावा बहुत सारे आजकल फ्रॉड्स हैं, जैसे साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, अलग तरीकों से लोगों को चीट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बना के पैसे लिए जा रहे हैं। बातिल का मतलब होता है बुराई, ऑपोजिट ऑफ गुड। यानी ऐसी चीज़ों को मत खरीदो जो हराम बिज़नेसेस को सपोर्ट करती है। मान लीजिए कोई शख्स है जो चोरी का माल बेच रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत उम्दा क्वालिटी का माल है, लेकिन बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है और आपको पता है कि इसकी कीमत इतनी सस्ती हो ही नहीं सकती। और ये शख्स इतनी सस्ती कीमत में लाकर कैसे बेच रहा है और आपको इसका अंदाज़ा लग रहा है कि ये ज़रूर चोरी का माल है। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ़ माल खरीदा है क्योंकि मुझे वो सस्ते दामों में बेच रहा था, लेकिन आपने उसकी चोरी को सपोर्ट किया है, वो अगली बार भी वैसा ही करेगा। तो कंज़्यूमर भी ज़रूरी है कि वो ध्यान रखे कि वो क्या खरीद रहा है, क्योंकि इसमें आपने उसके गलत काम को सपोर्ट किया है, आप उसकी गलती में शामिल हैं। बातिल का एक मतलब होता है बेमकसद, यानी अपना माल फिजूल की चीजों में खर्च मत करो, दिखावा करने में खर्च मत करो। इस तरह से पार्टीज में, फंक्शंस में, शादियों में फिजूल खर्ची की जाती है, दिखावा करने के लिए बहुत ज्यादा खाना बनाया जाता है, बहुत सारी वैरायटीज बनाई जाती है, बहुत ज्यादा माल खर्च किया जाता है डेकोरेशन में और दूसरी चीजों में। ये सारे दिखावों की वजह से बाकी लोग भी इसको करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लग्ज़ूरियस चीज़ें खरीदना, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे भागना, गाड़ियों में, कपड़ों में, मोबाइल फ़ोन्स में दिखावे करना और बच्चों को उनकी मुँह माँगी चीज़ें दिलाना, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे भी उन चीज़ों की डिमांड करते हैं, फिर उसे पूरी सोसाइटी फ़ॉलो करती है और वो वेस्ट और ओवर कंज़म्पशन की तरफ चली जाती है। वतुदलू और ना तुम पहुँचाओ, अदला, युदली, इदला से है तुदलू। तुदलू का रूट है दाल लाम वाव, दल्व भी इसी से है। दल्व कहते हैं डोल को, जो कुएं में से पानी को निकालने में काम आता है। डोल का डालना, उसको भी उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी पानी की बकेट जब हम कुएं के अंदर डालते हैं और पानी को खींचते हैं, जिस तरह से हम अगर किसी जानवर को पकड़ने के लिए पहले ज़माने में, जैसे खरगोश को पकड़ने के लिए एक बकेट के अंदर खूब सारी गाजर रखकर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर उसे जैसे-जैसे जानवर करीब आने लगता है, उसे पीछे की तरफ खींचा जाता है और वो और करीब आता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। ये उसी तरह से इस्तेमाल किया गया है कि ना तुम पहुँचाओ, यानी ना तुम उन्हें रिश्वत दो, ना तुम उन्हें खिलाओ माल, बिहा यानी उसे, उन्हें, इलल हुक्कामी, किसे? माल को, इलल हुक्कामी तरफ हाकिमों के यानी हुक्मरान के, लिताकुलू ताकि तुम खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवालिन नासी लोगों के मालों में से। यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि वला तुदलू और ना तुम पहुंचाओ। असल में ये कनेक्शन है पीछे वाली बात से कि एक शख्स जब कुछ माल गलत तरीकों से बनाता है तो ये तभी मुमकिन है जब हुक्मरान, अथॉरिटीज, पॉलिटिशियंस को उसमें से एक हिस्सा खिलाता है उस माल का, ताकि वो अपना गलत काम जारी रख सके। कोई शख्स अगर गलत तरीकों से पैसे बनाता है तो ये तभी मुमकिन है जब वो गवर्नमेंट को अपने साथ मिलाए, जब गवर्नमेंट उसे ऐसा करने से ना रोके, तो उसे अपने माल का एक हिस्सा सरकार को भी देना होगा। अब देखिए, जब किसी ऑफिसर को गलत कामों में सपोर्ट करने के लिए पैसे खिलाए जाते हैं और उसकी आदत लग जाती है रिश्वत खाने की, तो वो जब अपनी ड्यूटी निभाने की, जो उसका फर्ज होता है वो निभाने के लिए भी रिश्वत खाने की कोशिश करता है, तो ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। रिश्वत देना पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। कुलू ताकि तुम खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवाली मालों में से, अन्नासी लोगों के, बिल इस्मी साथ गुनाह के। इस्म वो गुनाह होता है जो जानबूझकर कर किया जाता है। हुक्मरान को पैसे मत खिलाओ ताकि तुम लोगों के माल का एक हिस्सा खा सको। किन चीजों में रिश्वत खिलाना पड़ता है? दूसरों के माल को हड़पने के लिए, प्रॉपर्टी के नकली कागजात बनाने के लिए, गलत बिजनेस करने के लिए, गवाहों को खरीद कर मुकदमा जीतने के लिए। अन तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। इसका क्या मतलब है? यानी
जिस शख्स को तुम धोखा दे रहे हो वो तो नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो। अल्लाह ने हर एक इंसान के अंदर एक मीज़ान रखा है। हर शख्स जानता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत देना हराम है। इसके लिए कुरान का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपका दिल भी इस बात की गवाही देता है, आपको बताता रहता है कि ये काम गलत हो रहा है। ये आयत पिछली आयत से कैसे जुड़ती है? आप देखें, रमज़ान की ट्रेनिंग के बाद ये है असल जंग का मैदान। ये दुनिया है, असल दुनिया, जहां पता चलेगा कि आपके अंदर कितना तकवा है, आप अल्लाह से कितना डरते हैं, आप गुनाहों को से कितना रुकते हैं। और सबसे बड़ा इम्तिहान है पैसा। तुम अपना बिजनेस कैसे करते हो? पैसा कहाँ पे खर्च करते हो? पैसा कहाँ से कमाते हो? बिजनेस में लोगों के साथ किस तरह से सौदे करते हो? कहीं तुम एक दूसरे के साथ माप तोल में कमी तो नहीं करते? कहीं तुम एक दूसरे के साथ धोखा तो नहीं करते? कहीं तुम नकली माल बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं कमाने की कोशिश करते? अपने हराम कमाई को बरकरार रखने के लिए क्या तुम हुक्मरान को रिश्वत तो नहीं देते? ये है असल टेस्ट तकवा का। अल्लाह के नजदीक सबसे पहले तकवा का टेस्ट है तुम्हारी फाइनेंशियल ऑनेस्टी। तुम पैसे किस तरह से बनाते हो, कहां लगाते हो, और ये सबसे मुश्किल इम्तिहान है। आयत नंबर 189, यस अलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। किससे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये जो का आ रहा है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। अनिल अहिल्ला, नए चांद के बारे में। अहल्ला युहिल्लु इहलाल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिलाल कहते हैं नए चांद को। कुल कह दीजिए, हिया वो मवाक़ीतु औकात मुकर्रा है, यानी वक्त बताने का जरिया है। लिन्नासी, लोगों के लिए। वल हज्जी, और हज के। हिलाल का लफ्जी माना होता है आवाज बुलंद करना। उस वक्त अरब्स नए चांद को देखकर आवाज निकालते थे ताकि दूसरे लोग भी चांद को देखें। ये उनका खुशी का इजहार करने का तरीका था। तो हिलाल इसी से निकला है। यहाँ न्यू मून के लिए कहा जा रहा है। हर महीने में जब नया चांद निकलता है उसकी बात हो रही है। कुल कह दीजिए, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कह दीजिए, वो हिया वो यानी कि चांद, मुवाक़ीतु औकात, औकात वक्त की जमा है, यानी ये वक्त बताने का जरिया है, यानी दिन और महीनों का हिसाब लगाने का जरिया है लोगों के लिए। वल हज्जी, और हज का, यानी हज का हिसाब लगाने का कि हज का वक्त कब है, उसका हिसाब लगाने का जरिया है चांद, नया चांद। कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चांद के बारे में पूछने लगे कि चांद के फेजेस का क्या मतलब है, इस्लाम क्या कहता है। तो कुरान ने जवाब दिया कि ये वक्त बताने का जरिया है, ये कैलेंडर का हिस्सा है, खास तौर पर हज का वक्त बताने का जरिया है। मतलब बस इतना काफी है और कुछ सीखना जरूरी नहीं है। ये तो उन्हें पहले से पता था। ये लोग तो इस्लाम से पहले भी चांद ही को देखकर महीने और साल का अंदाजा लगाया करते थे। फिर उनसे ये क्यों कहा गया? असल में इन लोगों के कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे चांद को लेकर। मुशरिकीन के 3 मशहूर बुत थे, लात, मनात और उज्जा। ये लूनर गॉड्स थे। तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के बारे में पूछा, असल में वो अपने पुराने शिर्क के असरात दिखा रहे थे। मतलब रमजान के चांद का तो हमें समझ आ गया कि इससे हमें पता चल रहा है कि रमजान शुरू होने वाले हैं। अब आप हमें ये बताइए कि अगर चांद इस फेज में होगा तो क्या करना चाहिए, अगर वैसा हो तो क्या करें, पूछना ये चाहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इन्हें जवाब दीजिए कि चांद वक्त बताने का जरिया है, और स्पेशली हज। हालांकि इनका साल भी मुहर्रम से ही चालू होता था, लेकिन हज इतना बड़ा इवेंट था कि साल का अंदाजा ये लोग हज से लगाया करते थे। आप देखें, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम्स तो हैं लेकिन हर चीज में सुपरस्टिशन घुसा देते हैं। ऐसा मत करो, ये बुरा शगुन है, ऐसा करो ये अच्छा शगुन है, ये ऐसा क्यों करते हैं, वो वैसा क्यों नहीं करते, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, वैसा हो तो क्या करना चाहिए, यानी जुमेरात हो तो ये करो, जुम्मा हो तो ये मत करो। ऐसी बहुत सी मनगढ़ंत बातें, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या करो, छींक आ गई तो क्या करो। ये सारी फिजूल बातों में बहुत सा वक्त अपना जाया करते हैं, उसमें अपना दिमाग भी खपाते हैं। एक एग्जाम्पल है इस्तिखारा की नमाज।
बहुत से लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि इस्तिखारा की नमाज पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या चुना है? हमें कौन-सा ख्वाब आना चाहिए? हमें कैसे सोना चाहिए? हमें कब पढ़ना चाहिए? ये सारी मनगढ़ंत चीज़ें। आप देखें, इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह आपको सही रास्ता चुनने में मदद करता है। ये इसका कोई सपने से ताल्लुक नहीं है। आप देखें, कोई काम करने में अगर आपको उसकी उसकी तरफ पॉज़िटिव फ़ीलिंग आने लगे, अगर आपको लगने लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, अगर आपके रास्ते उसकी तरफ खुल जाएँ, तो इसका मतलब अल्लाह ने आपके लिए वो रास्ते खोल दिए हैं, वो आपके लिए कर लेना ठीक है। और अगर आपके लिए वो काम करने में मुश्किलें आने लगे, आपके रास्ते बंद हो जाएँ वो काम करने के लिए, अगर आपका दिल वो काम करने को ना करे, अगर आपको लोगों से पता लगने लगे कि हाँ, ये काम करने में ये सारे नुकसान हैं, तो आप उसे छोड़ दें। तो बस आप उस काम से खुद पीछे हट जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं कि फिर जब तुम पक्का इरादा कर लो, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मतलब ये कि मशवरा करने के बाद, इस्तिखारा करने के बाद, जब तुमने कोई फैसला कर लिया, फिर उस फैसले को अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर यकीन रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह पर उस तरह तवक्कुल करो जैसे उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो तुम्हें रिज़्क दिया जाता है जैसे परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। मशवरा करना, प्लानिंग करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन नतीजा अल्लाह के हवाले करना और उस पर तवक्कुल करना ये ईमान का हिस्सा है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलैसा, और नहीं है अलबिर्रु नेकी। बा रा रा इसका रूट है, राइचियसनेस के लिए आता है, नेकी बड़ी नेकी के लिए आता है। बिर कहते हैं बड़ी खुली जगह को, जंगल के लिए भी ये आता है। तो नहीं है नेकी बी अन, ये के तू तुम आओ अलबुयूता घरों को, मिन ज़ुहूरिहा उनके पीछे से तरफ से। बैत कहते हैं घर को, और बुयूत बैत की जमा है यानी घरों में। ज़ुहूर ज़हर की जमा है और ज़हर कहते हैं पीठ को। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने घरों के पीछे से यानी बैकयार्ड से अंदर मत आओ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे से दाखिल हो, बैक डोर से दाखिल हो या खिड़की से दाखिल हो। वलाकिन्ना, और लेकिन, अलबिर्रा नेकी उसकी है, मन इत्तका जो तकवा करे। असल नेकी उसकी है जो तकवा करे। ये घरों के पीछे से दाखिल होने में कोई नेकी का काम नहीं है। ये बात यहाँ क्यों कही जा रही है? ऐसा लग रहा है कि एक आयत में अल्लाह ने पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, नया टॉपिक शुरू हो गया। नहीं, असल में टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे भी उनका एक सुपरस्टिशियस तरीका था, एक सुपरस्टिशियस बिलीफ था। इसके पीछे एक पुराने ज़माने का तरीका था। होता ये था कि दौरे जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले जब लोग हज किया करते थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से थी। धीरे-धीरे उसमें शिर्क शामिल हो गया और लोगों ने नए-नए तरीके ईजाद कर लिए और उसके मुताबिक फिर हज करने लगे। तो इनका मानना ये था कि अगर कोई शख्स इहराम पहनकर घर से बाहर निकल जाए हज की नीयत से, तो वो ये समझते थे कि इसके बाद घर में दोबारा लौटना हराम था। यानी अब वो दोबारा घर में दाखिल नहीं हो सकता। होता यह था कि अगर कोई शख्स हज करने की नीयत से एहराम पहनकर घर से बाहर निकल गया है और फिर उसे याद आता है कि सफ़र में ले जाने वाला कोई ज़रूरी सामान अंदर ही छूट गया है, वो कोई चीज़ अंदर भूल गया है, तो वापस घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में ये क्या करते थे कि घर के अंदर दाखिल तो होते थे, लेकिन पीछे से, बैकयार्ड से दाखिल होते थे, या खिड़की से दाखिल होते थे, या दीवार के ऊपर चढ़ के उसे पार करके दाखिल होते थे, या कभी-कभी दीवार को तोड़ के अंदर दाखिल होते थे। अगर ये लोग किसी खेमे में रहते थे, तो उसमें पीछे से दाखिल होने के लिए उसे फाड़ कर अंदर घुसते थे। ये सुपरस्टिशन इस्लाम के आने के बाद इस्लाम में दाखिल हो गया। इस्लाम के आने के बाद भी जब ये लोग हज के लिए जाते हैं, तो इसे यानी घर में पीछे से दाखिल होने को नेकी समझते थे, आगे से दाखिल होना हराम समझते थे। तो अल्लाह उस बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि घरों में पीछे से दाखिल होना कोई नेकी का काम नहीं है, बल्कि नेकी उसकी नेकी है जो तकवा करे। आप देखें, हमने पीछे जो आयतुल बिर पढ़ी थी,
उसको छोटी सी आयत में समराइज करके यहाँ खूबसूरती से अल्लाह ने बयान किया है कि नेकी उसकी है जो तकवा करे, जो मुत्तकी है। वअतू और आओ तुम अलबुयूता घरों को, मिन अबवाबिहा उसके दरवाजे से, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून तुम फलाह पा जाओ। लेकिन ये यहाँ कहने का क्या मतलब है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सुपरस्टिशन मत करो, अल्लाह का तकवा करो ये नेकी है, ये भी कहा जा सकता था। इतनी स्पेसिफिक बात क्यों कही गई कि घरों में पीछे से दाखिल होना नेकी नहीं है, घरों में आगे के दरवाजे से दाखिल हो? और दूसरी बात ये कि ये आयत हमारी जिंदगियों में कैसे अप्लाई होती है। आप देखें, जो शख्स ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हैं, 10वें माले 20वें माले पे रह रहे हैं, उनके लिए तो पीछे से दाखिल होना मुमकिन ही नहीं है। और कई घर ऐसे होते हैं जिसमें पीछे से दाखिल होना मुमकिन ही नहीं है, और कभी हम लोग ऐसा करते भी नहीं है। तो ये आयत हमारे लिए कैसे अप्लाई होती है, हम इससे कैसे सीख ले सकते हैं? तो असल में ये अल्लाह सुब्हान ताला ने मुहावरा या ज़रबुल मिसाल या इडियम के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी ये एक ऐसा जुमला है जिसका मतलब लफ्ज़ों से नहीं बल्कि उसके छुपे हुए मकसद से समझा जाना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सीधे चलते हैं, नियम के मुताबिक चलते हैं, सही गलत समझते हैं, हर चीज़ सही तरीके से कानून के मुताबिक करते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। और कुछ दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो करेंगे वही जो उन्हें करना है, बाय हुक और क्रुक, सीधे रास्ते से नहीं तो उल्टे रास्ते से, लेकिन कानून के को फॉलो करने का ढोंग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करो सीधे तरीके से करो। घर में दाखिल होना है तो आगे से दाखिल हो जाओ, पीछे से जाने में क्या नेकी है, कर तो वही रहे हो जो तुम्हें करना है। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, जब इस्लाम का पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, अब इन सुपरस्टिशियस तरीकों को छोड़ो, अल्लाह का तकवा करो, अल्लाह से डरो, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा लो और फलाह पालो। यही असल कामयाबी है। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और क्या है असल कामयाबी? ये कि इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि ए हमारे रब, तू हमें क़यामत के दिन मुत्तकी लोगों में शामिल करना और हमारे गुनाहों को बख्श देना और हमारा हिसाब किताब आसान करना और आग के अजाब से बचा के हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर लेना। या रब आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.